Hi guys, are you ready? Okay, good afternoon. So आज जो हम लोग मिल रहे हैं ये किसके लिए? एक मेगा रिवीजन के लिए. After we have completed our syllabus, it's time now we have to revise the entire chapters from start to end. So let's do this. First chapter का नाम आता है क्या? क्या है चैप्टर का नाम? नेचर ऑफ ऑडिटिंग. Awesome. चलो तो बोलो एकदम अच्छे बच्चे कैसे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? मैं मेरे कान तरस गए सुनने के लिए. बोलो. ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ data, records, operations, performance statements of an enterprise for the stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the propositions before him for examination, collects evidence, evaluates the same, formulates the judgment which is communicated through his. Awesome. Who are the users of financial statements? Insiders and outsiders. Insiders में तीन लोग कौन से? Management, employees, shareholders. Outsiders में कौन से लोग हैं जिनसे पैसा आना है? अरे सुने नहीं आया? Debtors and government. बराबर ना? Government ना? Very good. Debtors and investors. जिन्हें पैसा देना है, जिन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, एंड जो एकदम न्यूट्रल है, फाइनेंशियल एनालिस्ट. लेजिटिमेट शेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा कौन देखेगा? एम्प्लॉइज. मुझे बताना टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट. ओके. टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. मैनेजमेंट. ओके. हु बेस्ड ऑन फंक्शन क्लासिफिकेशन टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. हु इज कंसिडर्ड लेस इंडिपेंडेंट? हु इज कंसिडर्ड मोर इंडिपेंडेंट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटर? To appraise the system framed by management. Purpose of external auditor? To comply with the statutory requirement. Who appoints internal auditor? Management appoints which auditor? Statute के हिसाब से कौन सा auditor appoint होता है? Who appoints external auditor? Who appoints external auditor? Owners. Who appoints external auditor? Owners. Okay. उसके बाद what are the three objectives of audit? Expression of opinion, errors and frauds, detection of errors and fraud. Auditor will give opinion or advice. वो opinion कैसी होगी? True and fair view. Is detection of errors and fraud the primary responsibility? Is it necessary when there is a doubt or suspicion? Which is voluntary, error or fraud? Which is voluntary? Which is involuntary? Intentional? Unintentional? Deliberately done? Not deliberately done? Concealed? Unconcealed? Causes of errors and fraud? ICC tax management. Awesome. Bolo answer. Ignorance, carelessness, concealment, management, taxes. Show up the picture, depress the picture, and to convert errors into personal benefit. Different types of errors. कौन से? Self-revealing and not self-revealing, concealed and unconcealed, intentional and unintentional, and procedural error. As per SA 240, two types of intentional misstatements. Concept: fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. Assets में तीन बातें कौन सी? Cash, goods, books of accounts. और एक बार कैश में दो बातें होती है. कौन सी? इन्फ्लेशन ऑफ, नहीं सुना नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन ऑफ पेमेंट्स, सप्रेशन ऑफ रिसीट्स. ओके. क्या आप मुझे आपका फेवरेट फ्रॉड, टीमिंग एंड लेडिंग बता सकते हो क्या? ओके. तो हो जाए. बोलो. व्हाट इज टीमिंग एंड लेडिंग? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बीइंग misappropriated. Also to prevent its detection, amount received from the customer subsequently is credited to the account of the customer who has paid. Similarly, amount received from the customer thereafter is credited to the account of the second customer, and such a practice is continued so that no one account is left outstanding for any length of time that will lead management to send out either statement of account to him or to. Okay. क्या आप मुझे बता सकते हैं measures to be taken for prevention of misappropriation of goods? Stores ledger, periodic check, rules and regulation, external security arrangements,
physical verification and ratio analysis. As per SA 240, what are the auditor's responsibility for detection of errors and fraud? Reasonable assurance, risk management and auditor's attitude. Reasonable assurance कैसा चाहिए? That financial statements are free from material misstatement. Risk कब ज़्यादा होगी? Error of fraud. Error of fraud. Management fraud या employee fraud. And auditor का attitude कैसा होना चाहिए? Professional skepticism. Okay, what are the various aspects to be covered in an audit? First point, accounting system and internal control. Review, checking, verification of assets and liabilities, income and expenditure, comparison. उसके बाद, true and fair view, statutory requirements and reporting. What are the basic principles governing an audit? Integrity, objectivity and independence, confidentiality, skills and competence, accounting system and internal control. Pay करते documentation, audit, planning, audit, evidence, audit, conclusions and reporting. Okay, what are the inherent limitations of audit? Inherent limitations of audit. Nature of financial reporting, nature of audit procedure, timeliness of financial reporting and balance between the benefit and the cost and other matters. बच्चों मैं क्या पूछ रहा हूँ? Dash is started with preconceived notion. Never started with preconceived notion. To give true and fair view. Critical examination. बोलो ना, critical examination in all the areas, in specific area, to report what he finds in the normal course of examination. Fraud is suspected. Sure हो आप लोग? Okay, उसके बाद मुझे आप बता सकते हैं कि there are two types of audits. Voluntary and as required by law. Okay, so voluntary and as required by law. Companies Act के अंदर कौन सा audit? Voluntary or required by law? Required by law. Individual. HUF. Public charitable trust. Required by law. Okay, उसके बाद आपका favorite सवाल. What are the advantages of independent audit? आता है क्या? Last question, then first chapter is over, guys. Come on. So, bolo, first chapter ka last question. What are the advantages of independent audit? It safeguards the financial interest of the persons who are associated with the management of the entity. It acts as a moral check. Third point. Fourth point. Fifth point. So, क्या कहते हैं? Third point. It helps in settlement of liability for taxes, negotiating loans, and determination of purchase consideration. It helps in settlement of trade disputes for higher wages or bonus and insurance claims. It helps in settlement of accounts at the time of admission, and it also helps government to provide what? Assistance and issue various licenses for trade. एकदम आसान है. Last 3 points कौन से? बोलो, come on. Ascertain whether proper books of accounts have been maintained, detection of wastages and losses, and report weaknesses. Chapter number 1 over. Confidence आ रहा है या नहीं आ रहा? सच सच बोलो. Yes. आता है chapter number 2 पे non stop. चलो, audit is a, अरे मतलब बॉडी में दौड़ता रहे. Audit is a logical process to assess the actualities of the situation and express an ओपिनियन. ओपिनियन क्या होगा, कैसे होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू. उसके लिए क्या करना पड़ता है? एग्जामिनेशन. इफ इट इज डन इन अ रेकलेस और नेग्लिजेंट मैनर, देयर विल बी लॉस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज. ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना है? एविडेंस. एविडेंस क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच हिज ओपिनियन इज बेस्ड. उसे क्या कहेंगे अपन? ऑडिट एविडेंस. ये एविडेंस कैसा चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंस. बोलो, ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1, मटेरियलिटी, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. हायर द मटेरियलिटी, लोअर द मटेरियलिटी. हायर द रिस्क, लोअर द रिस्क. छोटा सा छोटी सी साइज तो एविडेंस कम, बड़ा साइज तो एविडेंस ज्यादा, और होमोजीनियस तो एंड हेट्रोजीनियस तो ज्यादा. खत्म हो गया. उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. सबसे पहले कौन सी प्रोसीजर है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द
internal control, and decide what? Nature, timing, extent. It's a matter of auditor's professional judgment and decide what? Further audit procedure. उसमें first point क्या आएगा? Test of controls to check what? Operating effectiveness of the controls. उसमें 3 बातें देखेंगे. Nature, timing, extent. Nature में क्या बोलेंगे बच्चों? How they were applied, by whom they were applied, and consistency with which they were applied. Timing में क्या देखेंगे? Particular point of time और and last में extent में frequency, length of time, frequency, length of time, rate of deviation, relevance and reliability. उसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों? अपन we will do the substantive procedure. उसमें first क्या चेक करेंगे अपन? Test of details. उसमें क्या देखना होगा? Crop, measurement, existence, valuation. याद आता है? बोलो. Crop, measurement, existence, valuation. C, crop. बोलो बोलो बोलो. C मतलब क्या? Completeness. R, rights and obligation. O, occurrence. P, presentation. वापस एक बार. C, सुने नहीं आ रहा? C, R, rights and obligation. O, P, लास्ट 3 पॉइंट्स कौन से? Measurement, existence, valuation. Okay, उसके बाद अपन बात करते हैं what are the different methods to obtain audit evidence. Hey, what are the different methods to obtain audit evidence? Oh, नहीं, और एक बार बोलेंगे. मेरे साथ बोलेंगे. OICAI. अब जवाब भी इसी जोश के साथ देंगे. O मतलब observation. I, inspection. C, computation. A, analytical review. I, inquiry and confirmation. एकदम आसान है. Can the auditor use the audit evidence obtained in the previous audits? 2 बातें कौन सी? Effectiveness and risk. बोलो और एक बार. हाँ, तो effectiveness of what? Effectiveness of controls and its application. Effectiveness of IT controls and effectiveness of other elements of control. Risk because of characteristics of control. Risks because of changing circumstances, and last में risk of material misstatements. एकदम आसान है. What are the different types of audit evidence? हाँ बोलो. Depending upon source and depending upon nature. Question बोलो एक बार. What are the different types of audit evidence? कौन से different types of audit evidence? Depending upon source and depending upon nature. Source के हिसाब से कौन से 2 है? Internal, external. And depending upon nature, visual, oral, documentary. Reliability criteria, which is more reliable? Internal, external. And अगर internal control strong है तो internal. मुझे बताओ which is more reliable? Original या photocopied? Or given to him by someone else or obtained by himself? Okay, उसके बाद मुझे आप बताओ कि what are the observations about audit evidence? Observation आता है बोलो. Nothing is mysterious. Loud and clear, come on. थक गए आप लोग? नहीं ना, तो बोलो फुल एनर्जी के साथ. Mysterious, reliable, easy or difficult, persuasive or conclusive, increase in assurance when different sources confirms the same. Persuasive, do not confirm. तो ऑडिटर भाई साहब क्या करेंगे? Obtain the evidence by himself. 2 बातें ध्यान में रखेगा. Cost and benefit. Doubt है तो obtain sufficient and appropriate audit evidence. Okay, ऐसे 320 talks about used in 3 stages. कौन सी? Planning, performing and reporting. बोलो और एक बार. Okay, what is materiality? ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को चेंज करने की ताकत रखता हो. Any information which has the power to influence the decisions of the user is called as what? Materiality. Okay, chapter number 2 खत्म हो गया क्या? Yes, वो एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट बचा हुआ है. कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. उसके 7 पॉइंट बोल दो एक बार, खत्म करो. फंडामेंटल और प्री रिक्विजिट प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. खत्म हो गई बात. तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 खत्म. कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या?
यस, अब बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? ये प्रिपरेशन फॉर ऑडिट। ओके, ऑडिट प्रोसेस के 10 पॉइंट याद है? होटल जा रहे थे अपन, हाँ तो बोलो ऑडिट, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, arithmetical accuracy, documentary evidence, validity of transactions, adequate disclosure, scrutiny, overall reliability and accounting ratios. इजी है? कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? नो। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे बताना ऑडिट प्लान क्यों करेंगे अपन? to ensure quality of work, examination and evaluation of internal controls, to decide the extent of substantive procedure. उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बोलो PY BCCI, और एक बार PY BCCI TRP। ओके, एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्यों करेंगे? टू कन्वे द रियल पिक्चर ऑफ अकाउंट्स। ओके, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे चेक करेंगे? एक्ट्स एंड रूल्स, याद है आपको? बोलो क्या कहते हैं? एक्ट्स एंड रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मिनट बुक्स, लीगल अग्रीमेंट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरीके के, कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कौन से दो तरीके के हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, उसके बाद मुझे बताना कि ओवरऑल रिलायबिलिटी कब होगी अपने को? ओवरऑल रिलायबिलिटी to confirm with the findings already made and scrutiny to comply with the statutory requirements. Okay, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी। कैसे बनेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी? स्कोप, प्लान, वो थिक पॉइंट्स याद है ना आपको? चलो बोलो फटाफट। स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डायरेक्ट, रिजल्ट्स। ओके, स्कोप इज बेस्ड ऑन engagement, plan is based on reporting objectives, nature, timing and extent of available resources, direct the engagement team and consider the results of preliminary engagement activities. एकदम आसान है, वेरी गुड। उसके बाद यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाना है। बोल सकते हैं कि ओवरऑल ऑडिट प्लान कैसे? याद है वो 16 पॉइंट पढ़े थे अपन ने। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कम ऑन, नहीं सुने आ रहा मुझे? अरे बोलो, अच्छे से बोलो। वेरी गुड, और एक बार बोलेंगे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मेरे हाथों को फॉलो करना, आंसर आपको दिख जाएगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द क्लाइंट, effect of new accounting policies and degree of reliance on accounting system and internal control. फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी, मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620। फिर क्या करेंगे अपन? रोटेशन ऑफ एम्फेसिस। फिर क्या होगा? स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन क्या था ये? क्वेश्चन क्या था ये? ऑडिट प्लानिंग। क्या था? ऑडिट प्लानिंग। आप बात करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस। याद है आपको ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस? फॉर्मेट बोलो फटाफट। फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट, एरिया, इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंट, साइन, रिमार्क्स। नहीं सुनाई? नहीं आया? नहीं आया सुनाई? बोलो और एक बार, और एक बार हो जाए। ऑसम। एरिया से क्या याद आएगा? टोटल पर्सपेक्टिव। नहीं, और एक बार बोलो। इंस्ट्रक्शन से क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और एक बार बोलेंगे। ओके, उसके बाद असिस्टेंट से क्या याद आएगा? सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स बिकम इजियर। एरिया से वापस एक बार, टोटल पर्सपेक्टिव। इंस्ट्रक्शन से क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। असिस्टेंट से सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स बिकम इजियर। और साइन से प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिमार्क से प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। एकदम आसान है। उसके बाद ये मेंटल प्लान है, ओरल प्लान है, ये रिटर्न प्लान है। वेरी गुड। तो है ना, मेंटल भी मत बोलना, ओरल भी मत बोलना। इट इज व्हाट? अ मेंटल प्लान ना, ओरल प्लान ना, रिटर्न। तो क्या होगा? कोई इंपॉर्टेंट बातें छूटेगी क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी इग्नोर्ड। लास्ट 2 पॉइंट्स, serves as a guide, serves as an evidence। और एक बार बोलो। ओके, उसके डिसएडवांटेज क्या कहता है? पहला, इट इज वेरी मैकेनिकल। याद है आपको? इट इज वेरी मैकेनिकल, rigid and inflexible, inefficient articles will take shelter, and hard and fast audit program will kill the initiative of efficient and enterprising assistants.
खत्म हो गई बात यहाँ पे, ओके। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 की। बोल पाओगे क्या आप लोग? यस, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, ऐसे नंबर 220। सबसे पहले कौन है यहाँ? एंगेजमेंट पार्टनर। कम ऑन गाइस, आई एम नॉट एबल टू हियर यू लाउड एंड क्लियर। एंगेजमेंट पार्टनर, उसके बाद एंगेजमेंट टीम, फिर क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाई विद द quality and see that the engagement team complies with the relevant ethical standards. फिर क्या चेक करेंगे? इंडिपेंडेंस, 3 बातें होगी। obtain information from the firms and the network firms, evaluate the threats of identified breaches and take appropriate action to minimize the risk. फिर क्या कम्युनिकेट करेंगे? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, 2 बातें होगी। ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर डज नॉट कंटिन्यू टू बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर डज नॉट कंटिन्यू टू बी इंडिपेंडेंट, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विद द अदर्स इन द फर्म, ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम्स परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड कंसल्टेशन। कौन आएगा फिर? अपॉइंटमेंट और एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। उनमें क्या होगा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अपन क्या करेंगे? मॉनिटरिंग एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। रिव्यूअर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा? फासी। और एक बार बोलो, फासी। एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए फॉर ऑडिट रिपोर्ट, ए फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सी फॉर कंसल्टेशन एंड लास्ट में इंडिपेंडेंस। एकदम आसान है, ओके। ऐसे 530 किसके बारे में बात करता है? ऐसे 530 किसके बारे में बात करता है? बहुत सही बोल रहे हो, बिल्कुल भी रोकना नहीं अपने आपको। ऐसे 530 टॉक्स अबाउट सैम्पलिंग, ऐसे 530 टॉक्स अबाउट, ओके। मुझे बताना कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द साइज ऑफ द सैंपल डिपेंड्स। याद है साइज किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, नंबर 1 साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल्स, उसके बाद कमन इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद 3rd पॉइंट टॉलरेबल एरर रेंज, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल, बराबर। एंड और कुछ बचा हुआ है क्या? रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एकदम आसान है। उसके डिसएडवांटेजेस क्या बोलेंगे बच्चों? उल्टा बोलना था। इट मे हैव सम error. Why? Because it is a process of estimation. Therefore, it cannot give you accurate results. Therefore, it is not completely reliable. Okay. मुझे ये बता सकते हो precautions to be taken while using sampling? बोलो, come on. बोलो, classify the transaction. आता है क्या? मत देखो बुक में, come on. मत देखो, एक बार फिर बाद में ओवरव्यू करने दूंगा समय। पहले बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, बोलो क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, 2 बातें होगी। ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, गो अहेड, नॉट सेटिस्फाइड, थॉट आउट टेस्ट चेक प्लान। फिर क्या करना होगा? सिलेक्शन शुड नॉट बी बायस्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी प्रीडिटरमाइंड, दैट विल लीड टू डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। दे विल बी मटेरियल और इमटेरियल। मटेरियल चेक इन डिटेल, इमटेरियल खत्म हुआ गया आंसर। क्या लास्ट पॉइंट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज वेयर टेस्ट चेकिंग कैन नॉट बी डन। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल? यस, बोलो। पहले तो रैंडम सैंपलिंग, इंटरवल सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एंड हैप्पैजार्ड सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में 2 मेथड्स, कौन से? सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इंटरवल में कौन से 2 मेथड्स है? ब्लॉक एंड क्लस्टर। उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स कौन से बचे हुए? यूनिट सैंपलिंग एंड हैप्पैजार्ड सैंपलिंग। मैं क्या पूछता हूं कि अपने को टेस्ट चेकिंग करना चाहिए क्या? मुझे बताओ, टेस्ट चेकिंग कर सकते क्या अपन? यस, मतलब वो जरूरी है क्या सब कुछ चेक करने का? नहीं। जो कॉन्फिडेंस अपने को सैंपल चेक करने पे मिलेगा, वही कॉन्फिडेंस अपने को किस पे मिलेगा बच्चों? ओवरऑल पॉपुलेशन पे। बट देयर शुड नॉट बी अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क। ओके, सरप्राइज चेक करना चाहिए क्या? कितने बार करना चाहिए? एटलीस्ट वंस। कौन से एरियाज में? कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सब में कर सकते हैं। और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या? सरप्राइज चेक करेंगे, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद इन्फॉर्म करना चाहिए। और ऑडिट रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व करेंगे? ओनली दोज विच आर मटेरियल। ऐसे 580 किसके बारे में बात करता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंसिडर्ड एज ऑडिट एविडेंस? बोलो हाँ या ना? यस, बट इज इट सफिशिएंट appropriate ऑडिट एविडेंस? So can it be used as a substitute? But as a supplementary?
यस, बट अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो यस वी कैन यूज इट एज ऑडिट एविडेंस. ओके, उसके बाद मुझे बताना, दो तरीके के फाइल्स होते हैं अपने, एक है परमानेंट फाइल, दूसरा है करंट फाइल. ऑडिट वर्किंग पेपर्स ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की. वो कितने साल तक मेंटेन करेगा उसको? कितने साल तक मेंटेन करेगा उसको? 7 years तक. पक्का? इट इज इन द ओनरशिप एज वेल एज द कस्टडी ऑफ द ऑडिटर. चैप्टर नंबर 3 इज ऑल्सो ओवर. कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलो सच्ची सच्ची. ओके, एक गहरी सांस लो फटाफट. चलो, एक आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट आपको है ना 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट आपको चैप्टर नंबर 3 को फटाफट पन्ने पलटने, फटाफट फटाफट गो थ्रू इट. हाँ, इसके लिए तो बोला, कुछ रहा है तो बोलो. चलो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? आता है क्या आपको? पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. इधर देखता है क्या तू हीरो? इधर नहीं तो पूरा लेक्चर पीछे मुड़ के बिठाऊंगा, है ना, लास्ट टाइम अभी. चलो बोलो फटाफट. दो तरीके के ऑडिट पीरियोडिसिटी के बेसिस पे. कौन से? कंटिन्यूअस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट. मुझे बताना, ऐसा ऑडिट जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद किया जाता है. ओके, अगर बिजनेस छोटा है तो कौन सा ऑडिट? फाइनल ऑडिट. और बड़ा है तो कंटिन्यूअस ऑडिट. क्या आप मुझे एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट बता सकते हो क्या? नहीं, मुझे हाँ या ना सुना ही नहीं आ रहा. आप लोग थक गए? बोलो, आप लोग थक गए? आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आना ना ऑडिट में, तो फुल एनर्जी के साथ. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? बोलो. एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिस्कवर्ड सूनर. व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर. Because of frequent attendance of auditor, this acts as a moral check and books of accounts are up to date. Auditor gets, याद आया ना, इसीलिए वो इस दिन के लिए ऑडिटर गेट्स मोर टाइम फॉर डिटेल चेकिंग एंड देयरफॉर द फाइनेंस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड रिपोर्टेड अपॉन मच अर्लियर एज इज कॉन्स्टेंटली इन. नहीं, मजा नहीं आया सुन के. एज इज कॉन्स्टेंटली इन, एज इज कॉन्स्टेंटली इन, as is constantly in with the management. He can take up the job at his convenience. Okay, उसके बाद मुझे बता सकते हो कि what are the disadvantages of continuous audit? बोलो क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट के डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों? पहले तो भारी मात्रा में समय की बर्बादी. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? गुड डील ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम. फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फिगर्स विल बी अल्टर्ड. फिर the work which was left incomplete on the previous visit may be overlooked on the next visit and there will be delay in issuance of reports. याद है क्या आपको? Yes. What are the advantages of final audit? बोल सकते हैं क्या आप लोग? Advantages of final audit. Come on. बोलो. Work can be carried on till the audit is over, avoiding the possibility to return on separate occasions. Number 2 क्या कहता है? Possibility of figures being altered is avoided and allocation of work for staff becomes easier. इससे disadvantage क्या है? Allocation of staff becomes difficult and last क्या है? There may be delay in issuance of audit reports. याद है क्या? नहीं है? खत्म हो गया ना advantage of continuous and आप कौन सा? essay 210. It talks about essay 210 agreeing the terms of essay 210. सबसे पहले उसमें क्या देंगे बच्चों? एंगेजमेंट लेटर. वो दो बातें डिस्क्राइब करेगा. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसके दो? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इशू ऑडिट रिपोर्ट एज पर फॉर्म एंड कंटेंट प्रिस्क्राइब. एंड मैनेजमेंट के नीचे क्या लिखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओवर. यस, एक बार नजर घुमाओ और देखते रहो. What are the different audit techniques? PY, BCCI, TRP. और एक बार P मतलब क्या कहेंगे? पोस्टिंग चेकिंग. Y, ईयर एंड स्क्रूटिनी. B, बैंक रिकंसिलेशन. C, कास्टिंग चेकिंग. C, कंफर्मेशन. I, इंक्वायरी. T, ट्रेसिंग इन सब्सिक्वेंट पीरियड. एकदम आसान है, खत्म हो गया. ओके, और कुछ बचा है कॉन्सेप्ट जो अपना रिवाइज करना? हाँ,
एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट, कब एक्सेप्टेंस करेंगे? देख तो रीजन जस्टिफाइबल है या जस्टिफाइबल नहीं है। जस्टिफाइबल है तो एक्सेप्ट करेंगे और नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ड्राफ्ट करके लेंगे। बट अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो अपन ये दो स्टार्स विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, नहीं तो अपन क्या कर लेंगे? रिजाइन कर देंगे या टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, राइट? दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट। या एक और है लिमिटेशन ऑफ द स्कोप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अगर वो आपको लगता है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ सकता है तभी, तो अपन क्या कर देंगे? वी विल नॉट एक्सेप्ट सच अपॉइंटमेंट। बोलो और कोई कॉन्सेप्ट छूटा है अपना रिवाइज करने का? हाँ, मेथड्स ऑफ वर्क। बोलो काम कैसे करें? मतलब ये सब ऐसे छपरी पॉइंट्स है। बोलो काम कैसे? रोज जाएंगे, रोज का काम रोज करेंगे, इन टाइम आउट टाइम मेंटेन करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम में साइन करेंगे, अलग अलग टेक्स ये करेंगे, और लास्ट में क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। खत्म हो गई बात? ओके आगे बोलो। चलो चलो कम ऑन। हाँ, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स यूज टू प्लान एंड परफॉर्म, बराबर। फिर एक्सटर्नल क्या इंस्पेक्शंस के लिए काम में आता है। फिर उसके बाद फ्यूचर सिग्निफिकेंट ऑडिट्स। इट्स द सेम पॉइंट्स व्हिच वी स्टडीड इन द ऑडिट प्रोग्राम। बट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स? ISL, ACA, C। बोलो और एक बार, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स? ISL, ACA, C। I मतलब क्या? इश्यूज मेमोरेंडा। बार बार बोलना मेरे पीछे पीछे। I मतलब क्या? इश्यूज मेमोरेंडा। और एक बार बोलेंगे इश्यूज। S मतलब क्या? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। I मतलब इश्यूज मेमोरेंडा। S मतलब समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। L मतलब लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। I मतलब कम ऑन I मतलब S मतलब समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। L मतलब लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद A ऑडिट प्रोग्राम, A ऑडिट प्रोग्राम, C चेकलिस्ट, A ऑडिट प्रोग्राम, C चेकलिस्ट। I मतलब क्या? इश्यूज मेमोरेंडा। S मतलब समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। L मतलब लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। A ऑडिट प्रोग्राम, C चेकलिस्ट, A एनालिसिस, एंड लास्ट में क्या कहते हैं? C मतलब करस्पॉन्डेंस। खत्म हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ओवर। सो नाउ द चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीटली ओवर एंड आगमन करते हैं चैप्टर नंबर 4 का। आपको एक बस बताना चाहूंगा कि इट्स जस्ट हाफ एन आवर एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 3 चैप्टर्स। मतलब ऑन एन एवरेज वी आर टेकिंग 10 मिनट्स पर चैप्टर। कमेंडेबल, राइट? मतलब आप सीरियस सोचो कि जब आप ये अभी, जैसे आप अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आप अभी, हाय बच्चों, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो अभी, है ना? यस। तो आपको तभी भी यही कॉन्फिडेंस आने वाला है। आ रहा है ना अभी भी कॉन्फिडेंस? यस। तभी जवाब देना हाँ करके, ठीक है? तो दैट विल हेल्प यू कि बस ये आपको फटाफट रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। ऑडिट रोज खत्म हो सकता है अपना ऑडिट, हो सकता है ना? राइट। 1 घंटा रोज अपन ये लेक्चर देखेंगे, रोज ऑडिट होगा अपना, राइट? रूटीन बना देना इसको, राइट? वेरी गुड। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर शुरू करते हैं। आपका फेवरेट चैप्टर ये, तो आपका फेवरेट चैप्टर है कौन सा? ये इंटरनल कंट्रोल। चलो बोल सकते हैं क्या इंटरनल कंट्रोल के बारे में? यस। चलो तो सबसे पहले तो आप मुझे डेफिनेशन बताएंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? हो जाए, बोलो। इंटरनल कंट्रोल इज डिफाइंड बाय एज पर, अपन अच्छे से बोलेंगे, एज पर SA 315, internal control is defined as the process designed, implemented and maintained by persons who are charged with governance, management and other personnel to provide reasonable assurance to achieve entities objectives. कौन से? Reliability of financial reporting, effective safeguarding of assets, effectiveness and efficiency of operations and compliance with applicable laws and regulation. So internal control में कहते हैं बच्चों कुछ inherent limitations भी है। क्या आप इस बात से सहमत हो? Yes, बिना बुक में देखे बोल सकते हैं क्या? What are the inherent limitation? बोलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? Role of human judgment, ineffective operation of controls, collusion among employees, बोलो जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एंड लास्ट में स्मॉल एंटिटीज। और एक बार बोलेंगे, चलो कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? रोल ऑफ, सेकेंड पॉइंट इनइफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है?
collusion among employees, and last point क्या कहता है, judgment by and उसके बाद smaller entities. Okay. उसके बाद इन सबके वजह से देखते हैं क्या इंटरनल कंट्रोल आपको हमेशा हमेशा आपको एरर्स एंड फ्रॉड से प्रिवेंशन दे सकते हैं क्या? नहीं. सो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है? ऑडिट रिस्क, जो चैप्टर 3 में पेंडिंग है. करेक्ट है ना? ऐसी सीक्वेंस में पढ़ा था अपन ने. यस. सो ऑडिट रिस्क की अगर बात करें तो कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज ऑडिट रिस्क? द रिस्क दैट auditor expresses an inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. Okay, so risk मतलब यहाँ पे risk क्या बोला था अपन ने? The possibility of account balance, class of transaction or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements. अब इसको अगर इंटरनल कंट्रोल के पहले देखें तो inherent risk, if controls fail to prevent, detect, correct, control risk, and auditor fails to prevent, detect, correct, detection risk. Control risk and inherent risk are together called as risks of material misstatement. How are they related with one another? Directly. Control risk ज़्यादा तो inherent risk, तो detection risk कम. Detection risk is related inversely. Okay, उसके बाद मुझे बताओ what is the aim of internal control? पूरे 21 पॉइंट याद है क्या आपको? जय राम जी की, बोलो फटाफट. अकाउंटिंग सिस्टम एंड कुछ भी नहीं बोलने का मेरे पीछे, है ना? हाँ, मैं एकदम चेक कर रहा हूं. मैं आपको बोलो अकाउंटिंग चार्ट्स एंड अकाउंटिंग मैनुअल्स. बस बिना देख के बोल रहे हो क्या? बिना देख के बोल रहे हो क्या? देखो मेरे साथ रहना, मस्त है. यू कैन डू इट. मुझे आप पे पूरा भरोसा है. बस वो थोड़ा सा रिदम आ गया ना, यू कैन डू इट. मजाक नहीं कर रहा हूं, बस बोलो. और वो आपको फील याद आ रहा है कि वो आर यू गोइंग बैक इन टाइम? ऐसा हो रहा है क्या? अरे यार अभी तो पढ़ा ये सब चीजें, राइट? तो वही चीज चाहिए अपने को, और इसके लिए अपन ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं. इसलिए तो आप अभी YouTube पे देख रहे हो ये. ठीक है, चलो बोलो फटाफट. क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट? क्या कहता है? अकाउंटिंग चार्ट्स एंड अकाउंटिंग मैनुअल्स प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ वर्क. सो देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कस्टोडियल फंक्शन. इन अदर वर्ड्स, नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम. So do what? Specify the authority. Why? To record the transactions correctly. कैसे record करेंगे? Documentation at each stage by evolving standardized records. Also do what? Periodical accounting and financial reporting by following cut-off procedure that will help in safeguarding of assets and minimizes losses and wastages. Okay, उसके बाद specifying the authority means fixing of responsibility. Fixing of responsibility makes errors and frauds difficult and work encourage discourage. उसके बाद क्या करना होगा? अप्रेजल ऑफ ऑपरेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी पर्सन्स. लास्ट 2 पॉइंट्स क्या कहता है? लोकेट डेविएशंस एंड एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इजी. आगे बढ़ सकता हूं यहां से. यस. उसके बाद मुझे बताना इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट जुड़े हुए क्या? चलो बोलो फटाफट. इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट जुड़े हुए क्या? यस. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर भी जुड़े हुए क्या? ये कॉन्सेप्ट आप लिख के आ सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना? यस. उसके बाद मुझे एक बात बताओ, एनवायरमेंट को स्टडी करना जरूरी है क्या? यस. तो मुझे पहले बोलो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. वो पिरामिड बनाया था, याद करने की कोशिश करो. मत देखना बुक में. बोलो कंपोनेंट्स ऑफ. अब भी देखोगे तो हर बार जिंदगी भर बुक में देखते रहोगे. अब भी थोड़ा जोर लगाओ. नहीं आता है तो एक्सट्रीम केस में देखो. ठीक है ना? चलो बोलो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा सबसे पहले? इंफॉर्मेशन. पक्का क्या? सबसे पहले क्या होगा? इंफॉर्मेशन. उससे क्या पता चलेगा? रिस्क. उसके ऊपर क्या लगाएंगे? कंट्रोल एक्टिविटीज. फिर कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? मॉनिटरिंग. एंड उसके ऊपर क्या होगा? एनवायरमेंट. बोलो सब लोग. फर्स्ट पॉइंट. सब लोग नहीं बोल रहे. सब लोग थक गए. ऐसे थकना अलाउड नहीं है. देखो मैं भी बोल रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूं, मैं आंसर भी बोल रहा हूं. आई एम स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस. तो आप लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे? कम ऑन. आज का वो दिन है जहां आपको ये जो लेक्चर है, आपको हमेशा आने वाले अटेम्प्ट तक, आपका अटेम्प्ट है तब तक आपको रोज सुनना ही है ना? तो आज का ये लेक्चर आपके वजह से अच्छा बनेगा तो खराब होगा. ठीक है ना? तो योर एनर्जी विल गिव मी मोर एनर्जी. कैन यू डू इट? आर यू श्योर? चलो बोलो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंफॉर्मेशन. उसके बाद क्या है? रिस्क. फर्स्ट पॉइंट वापस से इंफॉर्मेशन, रिस्क. उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज. वापस फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन, रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंट. अब आपको याद है एनवायरमेंट को भी समझना जरूरी है. उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था. वो आपको याद हो गए थे बट एग्जाम में लिखना नहीं था. याद है आपको? हाँ. तो कौन सी 3 बातें थी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. याद है आपको? याद आ रहा है क्या? हाँ बोलो. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
मैनेजमेंट एंड पर्सनल। अब उसके अंदर 3 2 2 ऐसे पॉइंट्स थे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर आपको याद होगा मैंने आपको टाटा कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ दिखाया था। सो क्या था वो? कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। बोलो वापस एक बार मेरे साथ साथ। नहीं हो पा रहा है, बोलो वापस एक बार। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, बोलो वापस एक बार। और एक बार बोलेंगे, ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? आता है आपको? वेरी गुड, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बार ये 3 पॉइंट बोल सकते हैं बिना बुक में देखे? हाँ, क्योंकि अभी भी हम लोग सर चीटिंग से बाज नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा तो देखेंगे हम लोग, है ना? तो बोलो वापस एक बार, कौन से 3 पॉइंट है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एंड एथिकल वैल्यूज एंड असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नहीं, सुने नहीं आ रहा। मैनेजमेंट। सो क्या कहता है मैनेजमेंट में? पार्टिसिपेशन बाय दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। बोलो और एक बार। ठंडे पड़ गए आप लोग, जरा बताओ एनर्जी आपके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मैनेजमेंट, थोड़ा स्टाइल मार के याद है क्या? मैनेजमेंट फिलॉसफी। और एक बार, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। बोलो वापस एक बार, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। क्वेश्चन पे फोकस करना। एनवायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, बोलो बोलो, पार्टिसिपेशन बाय दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। उसके बाद क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। बोलो बच्चों और एक बार। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। बोलो और एक बार। नहीं, सुना नहीं। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। अरे थोड़ा एनर्जी लगाओ ना, बोलो ना। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? एनवायरमेंट के बारे में। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ सकता हूं यहां से? श्योर हो गया आप लोग? बोलो रे हाँ या ना? यस। चलो तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनल चेक। चेक चेक, इंटरनल चेक आता है क्या? अरे इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इंपोर्टेंट डेफिनेशन रे बाबा, बोलो। Internal check is defined by Institute of Chartered Accountants of England and Wales as checks on day-to-day transaction which operates continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved independently or is complementary to the work of another. Objective being प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। मत देखते बैठो बुक में, वो आपका आधा ध्यान वो बुक में ढूंढने में जा रहा है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके जवाब दोगे ना, बराबर यहां से निकलेगा दिमाग से। आप अपने आप पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखो, और खास करके आपके दिमाग पे भरोसा रखो। यू कैन डू इट। जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। कर सकते हैं क्या? चलो पानी वानी पी लो, थोड़ा एनर्जाइज हो लो। चलो ओके, चलो। यस, वी आर बैक नाउ। कम ऑन, रेडी हो गया आप लोग? अरे हेलो एवरीबॉडी। यस, चलो बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल चेक? चेक चेक, इंटरनल चेक डिफाइंड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ England and Wales as checks on day-to-day transactions which operates continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved independently or is complementary to the work of objective being or early detection of a। अब आपको एक सवाल पूछता हूं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल चेक? सेम नहीं बोलने का, पूरा आंसर बोलने का। checks on day-to-day transactions which operates continuously as a part of routine system
whereby work of one person is proved independent or complementary to the work of another. Okay, what are the general considerations for framing the system of internal check? आता है क्या? आता है क्या? हाँ चलो गहरी सांस लो, गहरी सांस लो पहले एक और एक बार लो. छोड़ो छोड़ो मत, नहीं छोड़ना पड़ेगा नहीं तो जाएगा, लंबा हो जाएगा तू, है ना. बोलो गहरी सांस लो और एक बार. छोड़ो. ओके अब बोलो चलो. ओके चलो बोलो फर्स्ट पॉइंट. ए चलो छोरी कॉन्सेंट्रेट कर. तू खाई ना, याद रखना फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तुझे, याद रखना. तू खा वो देख. बोलो फटाफट. चलो तू एक भी बाइट ली ना, याद रखना तू अभी. चलो बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम. नो सिंगल, वो जैसे याद किया था ना वैसा आज बोलने का रे बाबा. बोलो नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग एनी प्रीवियस नोटिस. नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. No single person can handle the transaction from rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. Segregation of accounting and custodial functions. No single person can handle the transaction from start to end, rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. Segregation of accounting and custodial functions. Accounting control over important class of assets. बोलो और एक बार. Accounting control over important class of assets. और एक बार. No single person can handle the transaction from start to end, rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. Segregation of accounting and custodial functions. Accounting control over important class of assets. मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल याद आता है क्या? हाँ, to prevent loss or misappropriation of cash, mechanical devices such as automatic cash registers should be employed. अब लास्ट 3 पॉइंट्स कौन से? Budgetary control. Come on. Budgetary control, stock taking and elimination of conflicting responsibility. Statutory audit और internal audit related है क्या? हाँ, but ultimately who will be responsible? Statutory auditor. खत्म हो गया. ओके सो आजू का पार्ट अपना हो गया क्या? वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इजी है, वो अपने को वही चेक करना है, हाउ देवर अप्लाइड, बाय हुम देवर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड. फिर अपने को उसका परफॉर्मेंस चेक करना है, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, इंक्वायरी, ये सारी चीजें अपने को चेक करनी है. अब आते हैं अपन मेन वाला जो पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में, वो कौन सा? ऑडिट ऑफ सीआईएस, ऑडिट इन सीआईएस एनवायरमेंट. क्या आप मुझे बोल सकते हो क्या कि ऑडिट के तरीके चेंज हो गए या ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे? तू एड़ा है क्या? ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे कैसे बोल सकता तू? हाँ खा खुद की कसम. हाँ फिर ठीक है. चलो तो बोलो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट विल चेंज और द मेथड्स विल चेंज. मेथड्स विल चेंज. तो आपको बस मुझे ये बताओ कि प्लानिंग के लिए कौन से पॉइंट्स है वो बताओ. मत देखो बुक में, बहुत अभी मेरे को बना, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस रखो. आपको याद है क्या कि ऑडिट प्लानिंग में कौन सी बातें रखनी है ध्यान में? प्लानिंग वेदर इट इज, हाँ बहुत सही बोल रहे, वेरी गुड. वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड. याद है वो पूरा अपन ने फिर टोपोलॉजी देखी थी, लैंड मैन की बात कर रहे थे, अंदर जा रहे थे, हाँ या ना? हाँ मैं कह रहा हूं बस थोड़ा सा जोर लगाओ यहाँ पे, है ना. अभी करोगे ना हमेशा के लिए याद रहेगा, अभी लाइफ टाइम याद रहेगा, देखना. सो वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर क्या चेक करेंगे उसका? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. फिर क्या देखेंगे? एप्लीकेशन. फिर क्या देखेंगे उसका? प्रोसेसिंग. वेदर इट इज बैच और ऑनलाइन. ओके उसके बाद सवाल पूछता हूं, व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईडीपी सिस्टम? डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट एग्जांपल याद है? पूरी लंबी लिस्ट बोलो. कैलकुलेटर, अरे कैसे बोलते रहे? कैलकुलेटर, फेसबुक, टैली, बैंक इंटरेस्ट एंड हार्ड डिस्क.
याद आया क्या कुछ? हाँ, मत देखना बुक में, बोलो और एक बार। कैलकुलेटर, फेसबुक, टैली, बैंक इंटरेस्ट एंड हार्ड डिस्क। क्वेश्चन क्या है उसका? व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईडीपी सिस्टम? बोलो और एक बार, डिफरेंट डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईडीपी सिस्टम। ओके, कैलकुलेटर से क्या याद आएगा? कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। फेसबुक क्या है? एक प्रोग्राम जो क्या इनेबल करता है? कंट्रोल प्रोसीजर्स। उसके बाद टैली, सिंगल इनपुट मल्टीपल अपडेशन, बराबर। बैंक इंटरेस्ट क्या है? सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन। एंड हार्ड डिस्क, अबे बहुत सही, वल्नरेबिलिटी ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम स्टोरेज मीडिया। एकदम आसान है क्या बच्चों? बोलो ना हाँ या ना, सच सच बोल रहे हो ना आप लोग? यस। उसके बाद आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से जी। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पे देखते हैं, व्हाट आर द क्या बोलते हैं, सीआईएस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। बोल सकते हो क्या? सीआईएस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 जगह पे कंट्रोल्स लगते हैं। कम ऑन कम ऑन। कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग, कंट्रोल्स ओवर आउटपुट। याद आएगा आपको? ये सेम क्वेश्चन आपने अब पढ़ा है क्या आईटी में? मैं तब बोल रहा था पढ़ोगे, है ना? तो बोलो व्हाट आर द जनरल सीआईएस कंट्रोल्स, और एक बार। गलत। क्वेश्चन क्या पूछा? जनरल सीआईएस कंट्रोल्स। इमोशनल हो गए ना आप लोग, है ना? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, एग्जाम में यही होगा। बोलो व्हाट आर द सीआईएस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अब क्या क्वेश्चन पूछा? सीआईएस एप्लीकेशन। चलो बोलो, अभी बोलो। कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग, कंट्रोल्स ओवर आउटपुट। अब जनरल सीआईएस कंट्रोल्स बोल सकते क्या? ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर्स पे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर लगाए, फिर उसमें एकदम आसान है, ठीक है। अब रिव्यू की बात करते हैं, तो क्या क्या रिव्यू करना है? रिव्यू ऑफ सीआईएस कंट्रोल्स याद है आपको? तो कंट्रोल ओवर सिस्टम आउटपुट, बराबर। मैनुअल कंट्रोल्स एक्सरसाइज बाय द यूजर एंड प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर्स। हल्का फुल्का कुछ याद है क्या? नहीं, ठीक है। सो याद करने की कोशिश करो। सिस्टम बीच में था, इंसान इनपुट दे रहा था, वो आउटपुट कंसिस्टेंटली दे रहा था। सो सिस्टम तो कंसिस्टेंटली आउटपुट देगा, बट रिव्यू करने की जरूरत कहां थी? जो इनपुट में गड़बड़ हो सकती है वहां पे। सो कंट्रोल कहां, रिव्यू कहां करेंगे? मैनुअल कंट्रोल्स एक्सरसाइज बाय द यूजर, बराबर। और फिर कभी कभी आउटपुट को भी चेक करना पड़ेगा। सो कंट्रोल्स ओवर सिस्टम आउटपुट, और वो पासवर्ड्स वगैरह सही तरीके से लगे नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। यस। अब अगला सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू ऑडिट इन सीआईएस एनवायरनमेंट? वो डायग्राम याद करो, सब आएगा दिमाग में। बोलो ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर एंड ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। हो गया ना खत्म? उतना से याद आ गया, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी याद आ गई। मुझे बोलो इनपुट आउटपुट कहां चेक करते हैं? प्रोसेसिंग कहां चेक करते हैं? ओके, मुझे बताना सिस्टम अगर सिंपल है तो कौन सा यूज करना? अराउंड द कंप्यूटर। कॉम्प्लिकेटेड है तो थ्रू द कंप्यूटर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कहां प्रोसेस हो सकती है? कॉस्टली कौन सा है? सिस्टम डिग्रेडेशन कहां पता नहीं चलेगा? अराउंड द कंप्यूटर। ब्लैक बॉक्स किसे बोलते हैं? अराउंड द कंप्यूटर। व्हाइट बॉक्स किसे बोलते हैं? खत्म हो गया ना? इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 समाप्त। फर्स्ट वो चैप्टर्स खत्म हो गए। अब आते हैं आपके फेवरेट चैप्टर्स, कौन से? कंपनी ऑडिट। अरे सर मतलब वो भी क्या पूछने वाली बात है कि यार कंपनी ऑडिट, है ना? अपने घर के चैप्टर से तो, है ना? चलो तो अब तो बुक मत देखो यार, अब तो बुक मत देखो। क्या हुआ? थक गए? थकना मना है, जियो जी भर के, है ना? चलो कोई ब्रेक वेक नहीं मिलेगा अभी, नहीं तो कभी नहीं। चलो एक गहरी सांस लो, छोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो मेरी बात को। आपको इसे थका थका फील हो रहा है, यू आर टायर्ड, बट स्टिल आपको पुश करना है, क्योंकि यही हालत आपकी एग्जाम के डे पे होगी, बिकॉज यू हैव टू स्टडी सो मच एंड द टाइम विल बी वेरी लेस। सो अभी से अपने आप को ट्रेन करो, बराबर। वर्क हार्ड। मैं बोल रहा हूं आप लोग कर सकते हो। आप अपने आप पे भरोसा रखो, यकीन रखो, यू कैन डू इट। अपन ने इतने, आपको मुझे सच सच बताना, फर्स्ट 4 चैप्टर से अभी अपन ने रिवाइज करे, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? दिल से बोलना, जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं, है ना? और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे बैठे बैठे अगर आपका 70, मतलब मैं बहुत ये बोल रहा हूं 70% भी कॉन्फिडेंस है कि आपको पूरे 100 नहीं 70 60, सोचो अभी तक तो आपकी सेल्फ स्टडी बाकी है, आपकी अभी तक सेल्फ स्टडी बाकी है। तब क्या होगा? तब आप जब खुद से पढ़ोगे। सो ट्रस्ट मी एंड जस्ट डू इट। आप लोग कर सकते हो, है ना? आपको आप पे भरोसा, यू कैन पुश योर सेल्फ, है ना? यस, अभी करना है और डायरेक्टली रिजल्ट कैसे लेके आना है? पास। अमेजिंग।
कंपनी ऑडिट मस्त अपने अपने घर के सेक्शन से, चलो बोलो सेक्शन नंबर 141। क्या बात है, चलो साहिल अब अगर बातें कर रहा ना तू तो वहां से यूटर्न मार के घर जाने का, ठीक है ना? याद है ना, मैं बहुत डेंजर है ना? फिर कैसे गुस्सा हुआ था मैं, है ना? फिर खराब लगा था ना तुझे भी, तो बहुत डेंजर है रे, तेरे को मालूम नहीं, आइडिया नहीं तेरे को। तो अच्छा बच्चा है ना, तो अच्छा बच्चा है कि नहीं है, बोलना है ना, गुड बॉय जैसे बिहेव करना। फिर चलो बोलो, सो क्या बोल रहे हैं अपन? हाँ, सेक्शन नंबर 141 तीन चीजों के बारे में बात करता है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन ही इज प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। फर्म को अपॉइंट करना है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर। फटाफट अभी बोलते रहना, रुकना नहीं है। सिर्फ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, केस स्टडीज प्रोविजन सब डिस्कस करके हो गया, अपने को सिर्फ प्रोविजन को सिर्फ और सिर्फ उगलना है। क्या कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन को बाहर निकालना है, बस एक बार बोल के ही खत्म करना है इसको, ठीक है ना? चलो दिल में जो भड़ास है आज निकालो, बोलो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव। नंबर 1, होल्डिंग any security or interest in the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. However, a relative may hold up to face value of rupees 1 lakh in the company. Corrective action should be taken within 60 days. Indebted in excess of rupees, given indirect indebtedness in excess of rupees 1 lakh. Business relationship, qualified or disqualified? एग्जेम्पशन कब कब मिलेगा? प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड आर्म्स लेंथ प्राइस। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ director employed as a director or key managerial person. Okay, उसके बाद a person is full time employment elsewhere. सातवां पॉइंट अब नहीं बोलेंगे ना, पेंडिंग है ना. A person who is in full time employment elsewhere or holding as on the date of appointment maximum number of audits 20, excluding कौन से चार कंपनीज? one person company, small company, dormant company and private limited company with paid up share capital less than 100 crores. बराबर a person who is convicted by for an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed. Okay, उसके बाद providing services as mentioned under section number qualified or disqualified. Okay, उसके बाद मुझे बताना after appointment he attracts disqualification, he has to vacate the office. Such a vacancy is called as casual vacancy. Next we talk about appointment of auditors. बोल सकते हैं क्या पांचों सेक्शन में? बोलो 139 subsection 6 subsection 7 subsection 1 subsection 5 subsection 8. Okay, for appointment of first auditor. अब फटाफट provision बोल देना, रुकना नहीं किसी के लिए, नॉन स्टॉप फटाफट बोलो. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ appointed by board of directors within 30 days from the date of incorporation. If they fail, power goes to shareholders. Appoint within 90 days, tenure till conclusion of first annual general meeting. Okay, 139 subsection 7. Appointment of first auditor in case of appointed by within how many days? 60 days. If they fail, power goes to board of directors. If they fail, power goes to appoint within tenure till conclusion of first annual general meeting. 113 अभी सिर्फ प्रोविजन बोलते रहना. 139 subsection 1 appointment of in case of appointed by within in where annual general meeting, tenure till conclusion of its 6th annual general meeting. In every annual general meeting the matter should be placed for, if not ratified, board of directors shall appoint another auditor. Okay, उसके बाद मुझे बताना कि क्या बोलते हैं उसको, कितने दिन में आरओसी को इन्फॉर्म करना है? 15 days in form number ADT 1. Okay, उसके बाद 139 subsection 5 subsequent auditor in case of appointed by comptroller and auditor general of India within 180 days from the commencement of the financial year, tenure is till conclusion of its next annual general meeting. 139 subsection 8 filling of casual vacancy. दो कंपनीज कौन सी?
non-government and government company be it 3D और resignation. कौन fill करेगा? मत देखना बुक में, कौन fill करेगा? Comptroller and Auditor General of India within how many days? 30 days. If they fail, power goes to Board of Directors, appoint within 30 days. But if it is the non-government company, resignation है तो क्या होगा? Board of Directors shall appoint within 30 days and it shall be approved by shareholders within 3 months from the date of recommendation. 3D के केस में कौन अपॉइंट करेगा? Board of Directors within how many days? 30 days. 140 subsection 2. Auditor's duty in case of resignation. Simple है, क्या करना होगा? File a statement in form number ADT within how many days? 30 days. क्या लिखना होगा? Facts and other reasons causing resignation. किसे किसे देना होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो किसे देंगे? आरओसी एंड कंपनी. अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो आरओसी कंपनी एंड C&AG. नहीं देगा तो कितना जुर्माना? कम से कम, नहीं सुने नहीं आया, 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख. ओके, उसके बाद 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. किसके साथ घूमेगा? जिसके पास. तो किसके पास पैसा? एप्लीकेबल टू listed companies, unlisted companies having paid up share capital greater than or equal to. उसके बाद private companies having paid up share capital greater than or equal to companies other than A or B but having borrowings greater than or equal to 50 crores but not applicable to small company and one person company cannot appoint an individual auditor for more than one term of 5 consecutive years and an audit firm for waiting period of transition period of. खत्म होगी क्या बात? आगे बढ़ सकते हैं यहां से. नेक्स्ट सेक्शन 177 किसके बारे में बात करता है? ऑडिट कमिटी. बोलो ना 177. ओके, सो ऑडिट कमिटी की बात करें तो ऑडिट कमिटी किसे एप्लीकेबल है? पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज? पब्लिक कंपनी. उसमें लिस्टेड कंपनीज को कोई कंडीशन है क्या? नहीं. और क्या बोलते हैं उसको? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज PBT 10, 50, 100. और एक बार बोलेंगे 10, 50, 100. बोरिंग्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन. खत्म होगी बात, आगे बढ़ सकते हैं यहां से. 142 टॉक्स अबाउट व्हाट? ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. कहां पे फिक्स होगा? जनरल मीटिंग और इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरिन. हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ओनली इफ इट इज अपॉइंटेड बाय इट. ओके, उसके बाद में बात करते हैं 140 सबसेक्शन 1. ये सेक्शन आपको आना चाहिए, बोलो फटाफट. 140 सबसेक्शन 1. रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. सो कैसे रिमूव करेंगे? मस्ती किसको सूझेगी? है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दे विल पास अ रेजोल्यूशन इन्फॉर्म हुम? सेंट्रल गवर्नमेंट. बराबर. इन्फॉर्म नंबर ADT 2 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मिलेगा? अप्रूवल. तो इन्फॉर्म किसे करेंगे? शेयर होल्डर्स. कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? कौन सा एंड कितने दिनों में? देन ऑडिटर विल बी रिमूव्ड. 140 सबसेक्शन 4. अब क्या करना है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. याद है कैसे कुछ पढ़ा था? ओके, सो क्या करना होगा? जनरल मीटिंग, वो उसको नोटिस दिया, रोया सोया, याद है? हाँ, बोलो क्या? ये सब याद आएगा आपको, बोलो फटाफट. स्पेशल नोटिस टू द ऑडिटर. ही विल मेक द रिप्रेजेंटेशन circulate along with the notices. The company may fail because of its default or it was received too late, but he can go and he can read it in the general meeting. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोलो ना क्या? हाँ, अगर कोई अग्रीड पर्सन को लगता है इज सीकिंग नीडलेस पब्लिसिटी और डिफेमिंग द कंपनी, तो क्या होगा? सर्कुलेशन बंद, रिप्रेजेंटेशन रीडिंग भी बंद. खत्म हो गया यहाँ पे. यस, आगे बात करते हैं. व्हाट आर द, क्या बोलते हैं, पावर्स ऑफ ऑडिटर. पावर रे, पावर बोलो, पावर. Come on guys. Auditor obtain access to attend general meeting to report to members about right to lien. आता है right to lien? Yes, members को report कैसे करेंगे? अरे बोलो ना बच्चों, members को. F मतलब क्या? Financial statements. A मतलब accounts. S मतलब standards. T मतलब true and fair view. जनरल मीटिंग अटेंड करेगा? बोर्ड मीटिंग. ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, एक्सेस. क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है क्या वो?
ऑल टाइम्स ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ऑल टाइम्स ब्रांच के, सब्सिडरी के, ओनली ड्यूरिंग कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इंफॉर्मेशन ऑडिटर ले सकता है क्या मैनेजमेंट से? कौन डिसाइड करेगा कितनी इंफॉर्मेशन लेना? ऑडिटर। वो सफिशिएंट है नहीं, कौन डिसाइड करेगा? What are the duties of auditor? Duty number 1 क्या कहता है? 140 ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स। बोलो ए फॉर, मजा नहीं आया, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर। उसके बाद ड्यूटी टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू कंप्लाई विद। उसके बाद आपका प्यारा सेक्शन ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद 143 सबसेक्शन 12 किसके बारे में बात करता है? ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स। बोलो और एक बार, कौन से? एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इनकम टैक्स ऑडिटर। कौन से फ्रॉड्स? इंडिविजुअली और क्या एग्रीगेट में? 1 करोड़ के ऊपर या 1 करोड़ के नीचे? 1 करोड़ के ऊपर होगा तो किसे देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्फॉर्म नंबर ADT 4। नहीं कंप्लाई करेगा तो कितना जुर्माना? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। मैक्सिमम कितना? 25 लाख। खत्म हो गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते। पावर्स हो गए, ड्यूटीज हो गए। ऐसे 700 के बेसिक एलिमेंट्स आते हैं क्या आपको? अरे ऑडिट रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स 700 कवर कॉमन। बोलो कौन से? फर्स्ट पॉइंट टाइटल आता है ना रे? टाइटल, एड्रेस सी, ऑडिटर्स से अभी हेडिंग्स बोलना। टाइटल, एड्रेस सी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की मैटर्स, गोइंग कंसर्न। बोलो की मैटर्स। उसके बाद क्या हो गया? मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड लास्ट पॉइंट प्लीज बोल दो, प्लेस, डेट, साइन। 701 किसके बारे में बात करता है? की ऑडिट मैटर्स। याद है ना वो जो ऑडिट करते समय टू एनहांस दी कम्युनिकेटिव वैल्यू। सो ये लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है क्या? हाँ। ऑडिटर खुद से भी कर सकता है क्या? हाँ। और वो कब नहीं कर सकता? अगर उसने कौन सा ओपिनियन दिया हो तो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हो तो। बराबर। और बट अगर कानून बोलता है तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। यस। ओके, उसके बाद 705 किसके बारे में बात करता है? 705 मॉडिफाइड रिपोर्ट। 3 तरीके के ओपिनियन कौन से? क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड एडवर्स। लिमिटेशन ऑफ स्कोप हो या डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो कौन सा देंगे? क्वालिफाइड है ना? कौन सा? क्वालिफाइड। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, मटेरियल एंड परवेसिव। सोच समझ के। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, एडवर्स। और डिस्क्लेमर कब देंगे? व्हेन देयर इज लिमिटेशन ऑफ स्कोप। और 706 में कौन से मैटर्स है? एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ। ओके, उसके बाद अपन ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट ऑडिट के बारे में बोल सकते हैं क्या? हाँ क्या? हाँ बोल के बताओ ना। एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट बोलो। आता है क्या? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज। बोलो रे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बोलो। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड। उसके बाद बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड, देयर इज व्हाट? बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड सर्विसेज टू क्लाइंट। उसके बाद क्या कहता है वो अपना 6ठा पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट। याद है ना वो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन प्रिवेंटेड। फिर वो ग्लोब बनाया था, क्या बोलता है उसमें? in case of multinational companies, work can be spread using the knowledge of local expert firms. उसके बाद 8th और 9th point, lower याद आएगा? बोलो वापस एक बार। lower cost to carry out the work, lower cost for development of staff. And last point क्या कहता है? A sense of healthy competition. अब disadvantage क्या कहता है? Fees being shared. तो क्या हुआ? Psychological problem. फिर superiority complex. So lack of coordination. So common areas neglected. And therefore there is uncertainty about liability for work done. तो दोनों क्या कर रहे थे? तो ऐसे नंबर कौन सा था? 2 नहीं मतलब कौन सा ऐसे नंबर? एकदम आसान है। तो वो बोलता है डिवाइड द वर्क, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो। ओके, ब्रांच ऑडिट आता है। कॉस्ट ऑडिट बोलेंगे कि एक बार पूरा चार्ट। फिर कंपनी ऑडिट 1 भी खत्म। फिर कारो भी डिस्कस करेंगे। इजी है ना एकदम? यस, चलो बोलो। कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर मत देखो बुक में, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो सेक्शन नंबर 148 किसके बारे में बात करता है? ये
कॉस्ट ऑडिट, तो रूल्स कौन से है इसके लिए? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। सो उसमें सबसे पहले किसके बारे में बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इन फॉर्म नंबर CRA1 दो बातें होगी, एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। एप्लीकेबल टू class of companies engaged in production of manufacture of goods and services, including foreign companies having total turnover greater than or equal to 35 crores। और उसमें class of companies कौन से है? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में कौन से है? डी के पेट ने GPS चलाया। डी मतलब क्या? आई मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पेट पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, GPS, गैस, फार्मास्यूटिकल एंड शुगर। उसके बाद नॉन रेगुलेटेड में कौन सी? अटैक ऑन CM। ए मतलब क्या? आर्म्स एंड अम्युनिशन। फिर भागने के लिए टायर, ट्यूब्स, टर्बोजेट, स्टील, सीमेंट, मेडिकल डिवाइसेस। ऑडिट एप्लीकेबिलिटी फॉर रेगुलेटेड सेक्टर, individual turnover should be greater than or equal to 25 crores and overall turnover should be greater than or equal to 50 crores and non-regulated के लिए individual turnover 35 crores and the overall turnover 100 crores। but exemption कब कब मिलेगा? special economic zone 75% of revenue from exports and generation of electricity for captive consumption through captive generation plant। Okay, auditor will be appointed within 180 days from the commencement of financial year। government को intimate करेंगे in form number CRA2 within how many days? 30 days from the board of directors resolution or 180 days from the commencement of financial year, whichever is earlier। आप रिपोर्ट देने का, रिपोर्ट कैसे कब देने का? Auditor will give the report to board of directors within 180 days from the end of the financial year in form number CRA3। तो फिर क्या होगा? board of directors will give to central government in form number CRA4 within how many days? 30 days from the date of receipt of report। Taros applicable to all companies, true or false? False, because there are certain exceptions। समझा नहीं समझा? आएगा? इमोशनल नहीं होने का। सो कारोज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट, बोलो कौन से? वन पर्सन गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। सर मेमोरी लिखने की जरूरत है, हम लोग को ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, बोलो कौन से? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब पूरा प्राइवेट लिमिटेड का बोलेंगे क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग दी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग। उसके बाद total borrowings from banks and financial institutions not exceeding 1 crores and total revenue as disclosed in schedule 3 कितना? not exceeding 10 crores। okay, is it applicable? once applicable always applicable? no। कौन से मैटर्स को रिपोर्ट करेंगे? बोलो। फिक्स्ड एसेट्स आता है ना? अब बोलो ना फटाफट। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स अंडर सेक्शन नंबर 189। उसके बाद लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज 185 एंड 186। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज। फिर उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड यूसेज ऑफ लोन्स। फिर बात करता है फ्रॉड, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर 192 में नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 45IA। याद है क्या? हो गया कारो भी खत्म? यस। तो इसके साथ अपना खत्म हो गया क्या बच्चों? कंपनी ऑडिट 1। क्या बात है यार, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंपनी ऑडिट 2। बस कम ऑन, हिम्मत मत हारो, आप लोग कर सकते हो। सिर्फ 1 hour 15 minutes हुआ है, ज्यादा नहीं। ओके, सो कंपनी ऑडिट 2 तो ताजा है ना? चलो, तो रेडी हो गया बच्चों कंपनी ऑडिट 2 के लिए?
यस सेक्शन नंबर 128 ये एकदम सादा सुधा एकदम हाँ मस्त बोलना एकदम सेक्शन नंबर 128 किसके बारे में बात करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब ध्यान से सुनना वो डिबेंचर्स की भी बातें ध्यान से सुनना ठीक है सेक्शन नंबर 128 सो किसके बारे में बात करता है ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर टू बी मेंटेन एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेल्स एंड परचेसेस उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर मटेरियल एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट ओके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी केप्ट एट दी registered office can they be kept at any other place subject to board of directors pass a resolution and inform ROC within okay uske baad they should be able to explain all the transactions should be maintained on double entry bookkeeping system and on accrual basis can they be maintained electronically yes subject to what remain accessible cannot be altered displayed in legible form uske baad bolo kya retained in original form स्टोरेज रिट्राइवल एंड बैकअप ओके ब्रांच भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा क्या यस तो क्या कंडीशन है सेंड समराइज रिपोर्ट्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months ओके हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड एकदम आसान है ठीक है उसके बाद मुझे तो कितने साल के लिए मेंटेन करना है फॉर द पीरियड ऑफ 8 years क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेस कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स क्लाउड पे रख सकते हैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या बताना होगा नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर IP एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऑडिट ऑफ डिविडेंड्स की बात करते हैं बोलो फर्स्ट पॉइंट शेयर्स होगा ना फटाफट बोलो शेयर्स शेयर होल्डर्स डिविडेंड recommended by board of directors declared by shareholders दो बातें होगी declared not declared nothing declared final interim board of directors transfer the money to the separate bank account maintained with the scheduled bank within 5 days बराबर उसके बाद दो बातें होगी claimed not claimed pay within 30 days if not claimed pay jail up to 2 years फाइन मिनिमम 1 यही है ना फाइन अरे क्लेम नहीं क्लेम किया है बट नॉट पेड जेल अप टू 2 years फाइन 1000 पर डे एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम बट इफ इट इज क्लेम सॉरी नॉट क्लेम क्या होगा ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन विद द शेड्यूल्ड बैंक विद इन हाउ मेनी डेज 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days टू कौन सा अकाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट कौन सा अकाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट बराबर तो कितने साल तक रहेगा वहां एंड देन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स कीप द डिविडेंड एट अबेयंस एंड ऑब्टेन NOC उसके बाद बोनस शेयर्स आता है आपको यस तो बोनस शेयर्स कहां से दे सकते हैं फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड क्या कहता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ऐसा क्या कैपिटल रिजर्व हाँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सो क्या आर्टिकल्स में परमिशन चाहिए क्या बोलो हाँ या ना यस आर्टिकल्स में परमिशन चाहिए उसके बाद मुझे बताओ कि रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स once recommended can it be taken back can it be issued in lieu of dividend no उसके बाद मुझे बताओ कि कंपनी should not have done default in payment of क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड क्या कहते हैं एंड डेट सिक्योरिटीज और प्लस एम्प्लॉय ड्यूज प्लस मुझे तो ना पार्टली पेड पे देंगे या फुल्ली पेड पे एकदम आसान है खत्म हो गया क्या हो गया ये हाँ बोनस शेयर्स उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 129 किसके बारे में बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव fair view they should be prepared in accordance with accounting standards and comply with schedule 3 not applicable to banking insurance and electricity and any other company established under special act उसके बाद मुझे बताना क्या बोलते हैं उसको notes to accounts with the form part of financial statements क्या इन्हें एनुअल जनरल मीटिंग में रखना पड़ेगा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी उन्हें क्या बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एग्जेम्पशन कब मिलेगा मतलब कब बनाना नहीं पड़ेगा इनको वो बी लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा होली ओन्ड सब्सिडरी या पार्टली ओन्ड
but other members ko they have informed in writing. We have a proof of delivery and they do not object, and they are not in the process of, they are not listed or in the process of listing. कहाँ पे? In or outside India. And जो ultimate holding company, they have find the return consolidated financial statements with ROC. तो B Limited को क्या मिलेगा? Exemption. Okay, उसके बाद मुझे ना अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो कंपनी कौन से जोन में जाएगी? मतलब कौन सी 3 बातें हैं? रीजन, इफेक्ट एंड डेविएशन. और जुर्माना कितना लगेगा? फाइन मिनिमम अप टू, बोलो, जेल अप टू 1 ईयर, फाइन 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs और बोथ. एकदम आसान है, ठीक है. 130 किसके बारे में बात करता है? ये याद है? 130, 131 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आता है ये? बोलो. तो कौन एप्लीकेशन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी और कंसर्न पर्सन. 2 रीजन से. कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मेंटेन इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, या तो क्या कहेंगे? द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मिसमैनेज्ड. वेरी गुड. उसके बाद मुझे बताना 131 में क्या होता है? वॉलंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट. बराबर. बट कौन से 3 साल के कर सकते हैं? ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years. डायरेक्टर शुड मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल. खत्म हो गया. 133 में ऑडिटरी क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं? कैसे होते हैं? बोलो. आता है ना आपको? बोलो. मोदी जी नफरा, नफरा मोदी जी, मोदी जी आईसीआई, आईसीआई मोदी जी स्टैंडर्ड. एकदम आसान है. वेरी गुड. उसके बाद अपन बात करते हैं बोर्ड्स रिपोर्ट. तो आपको घर पे पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ा क्या? आज तक सर पढ़ ही रहे. कम से कम अभी जब लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे तो पढ़ा होगा तो देख लेना, ठीक है. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स. पूरा बोल सकते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बोलो. हाँ या ना? यस, चलो हो जाए. इश्यू ऑफ शेयर्स बोलो फटाफट. सबसे पहले एमओए, एओए. देन बिफोर इश्यूइंग द प्रोस्पेक्टस क्या करना होगा? मेक एन एप्लीकेशन. फटाफट बोलते रहना. मेक एन एप्लीकेशन टू 1 or more रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. फिर क्या करना होगा अपने को? बोलो. शेयर्स कौन से प्रोस्पेक्ट इश्यू करेंगे? शेयर्स कौन से? एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी. क्या हम लोग प्रीमियम पे दे सकते हैं? पार पे दे सकते हैं? स्वेट इक्विटी से? डिस्काउंट पे नहीं. ओके. उसके बाद मुझे बताना एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी डन विद इन 30 days. बराबर. फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. नहीं हुआ तो रिफंड द मनी विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू, या तो 15% इंटरेस्ट. एप्लीकेशन पैसा आएगा, कैश बुक, जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन बुक और कैश बुक. उसके बाद कॉल्स. कॉल्स में 2 बातें होंगी. कौन सी? कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस. कैन द कंपनी एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस? Will it be treated as part of share capital? Can they be given voting rights? Dividend, interest. Okay. अगर क्या हम लोग पार्टली पेड शेयर्स है वो कॉल सीनियर से फोरफीचर कर सकते हैं क्या? री इश्यू कर सकते हैं क्या? आता है इसके बारे में प्रोविजंस. यस. प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ. आर्टिकल्स में परमिशन चाहिए क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ चाहिए. आर्टिकल्स में परमिशन चाहिए. रिडीमेबल या इरिडीमेबल? रिडीमेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 years. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो मैक्सिमम 20 years. बट मेरे हिसाब से जो 30 years तक मैक्सिमम टाइम लिमिट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो रूल 10 है कोई, ठीक है. तो इट कैन बी रिडीम्ड आफ्टर, मतलब इट कैन गो टू 30 years, बट कुछ परसेंटेज 10% वो रिडीम करना चाहिए फ्रॉम द 21st year. ओके. उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से. और कंपनी डिफॉल्ट करना चाहिए कि रिडेम्पशन में? नहीं. फिर वो आपने वो पॉइंट्स पढ़े थे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट याद है आपको? यस. तो क्या कह देना उनको? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू. ट्राई करो बिना बुक में देखा. फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू, करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक्सपेक्टेड डाइल्यूशन. फिर मैनर ऑफ इश्यू, मैनर ऑफ रिडेम्पशन. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टर्म्स ऑफ इश्यू एंड टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. सो टर्म्स ऑफ इश्यू में क्या आता है? साइज एंड नंबर ऑफ शेयर्स. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? बोलो ना. प्राइस, बेसिस ऑफ प्राइस एंड नॉमिनल वैल्यू. एंड उसके बाद क्या है? टाइप और नेचर ऑफ शेयर्स. कौन से? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. एंड खत्म हो गया ना? तो काय को बोल रहे हैं एंड फिर? ओके. उसके बाद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में कौन सी बातें देखनी है? बोलो ना. टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में CPT मतलब कौन से? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, प्रीमियम एंड कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा यहाँ? स्पेशल रेजोल्यूशन. प्रेफरेंसेस खत्म हो गया. यस. अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्या क्या बोल रहा हूं. We talk about debentures. Everyone listen to me very carefully. We talk about what? Debentures.
सो क्या कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है? सो सेम पॉइंट्स है जो अपन ने इशू ऑफ शेयर्स के लिए पढ़ा था कि आपको प्रोस्पेक्टस देना है, आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड फाइल करना है, वो अवेलेबल है फॉर इंस्पेक्शन ऑन पेमेंट, बराबर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो मैक्सिमम पीरियड कितना है? 10 years, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो इट कैन गो अप टू 30 years, बराबर। डिबेंचर ट्रस्टीज विल बी अपॉइंटेड बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बट नॉट लेटर देन 60 days ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट, बराबर। आपको 25% डीआरआर में जमा करना होगा और 15% उस साल में जो डिबेंचर्स मैच्योर होते हैं 30 तारीख तक आपको जमा करने होंगे। याद है या नहीं आपको? यस। क्या डिबेंचर्स पार पे इशू कर सकते हैं? पार पे यस, प्रीमियम पे यस, डिस्काउंट पे यस, बट रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो सकता है क्या? नहीं। प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट पे करना जरूरी है क्या? यस। शेयर ट्रांसफर ऑडिट, शेयर ट्रांसफर चेक करना जरूरी है क्या? तो वो पॉइंट्स एकदम सिंपल थे। फिर अल्टरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल, ये तो अपना बेसिक अकाउंट्स का पार्ट था। सो यहां पे अपना कंपनी ऑडिट 2 इज ओवर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक वो कौन सा अपना? स्पेशल ऑडिट। फटाफट बोल सकते हैं क्या आप लोग? अरे बोलो ना, स्पेशल ऑडिट बोल सकते हैं क्या आप लोग? यस, चलो बोलो। फर्स्ट शुरू करेंगे किससे? ऑडिट ऑफ सिनेमा। तो बोलो, एंट्री शुड बी थ्रू प्रिंटेड टिकट्स, दे शुड बी सीरियली नंबर्ड, अनसोल्ड टिकट शुड बी केप्ट विद द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। उसके बाद एडवांस एंड करंट का सेपरेट सीरीज। उसके बाद फ्री पासेस शुड बी इशूड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोलो, एट द एंड ऑफ ईच शो अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड दैट शुड बी अग्रीड विद द कैश बुक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एडवर्टीजमेंट, रेस्टोरेंट इनकम एंड जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? अग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीबिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। खत्म हो गया क्या अपना सिनेमा? यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहां चलते हैं अपन? क्लब। क्लब इज द कंपनी यूजुअली लिमिटेड बाय गारंटी, बराबर। तो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल। तो पहला पैसा कौन सा मिलेगा? मेंबरशिप फी। दूसरा पैसा सब्सक्रिप्शन। दो बातें होगी, कॉल्स विल बी इन अरियर्स, कॉल्स विल बी इन एडवांस। ओके, अरियर्स में है तो प्रॉपर रिकवरी एंड एडजस्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड कराया नहीं करा, एडजस्टमेंट तो वेदर इट इज प्रॉपर, एडवांस में है तो प्रॉपर एडजस्टमेंट करा या नहीं करा। उसके बाद वो मेंबर्स से कुछ रिसीवेबल होगा तो फिर अपन उनके परचेज, कौन सा? फर्नीचर, क्रॉकरी, फूड स्टफ्स, उनका ऊपर स्टोर्स, इंटरनल चेक होना चाहिए, कॉमन पॉइंट। एंड लास्ट में कौन सा है? शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड्स, ये सब। अब होटल के 7 पॉइंट बोल सकते हैं आप लोग? बोलो। सबसे पहले कैश, इंटरनल कंट्रोल, रूम सेल्स, स्टॉक्स, कैजुअल लेबर, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, आप किसकी बात करते हैं अभी? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन? पेशेंट बिल्स। तो पेशेंट रजिस्टर, पेशेंट अटेंडेंस, पेशेंट बिल्स, बराबर, अग्रीड विद द कैश बुक। उसके बाद अदर इनकम कहां कहां से आएगी उनको? बोलो कौन से? ग्रांट्स, लेगेसीज, डोनेशन, एंडाउमेंट्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, बराबर। ये सारी चीजें अदर इनकम है। फिर उसके एक्सपेंसेस कहां कहां पे होंगे? स्टोर्स, लिनेन, अपैरेटस, मेडिसिन, इंक्रीमेंट टू स्टाफ, याद है वो इमेज प्रमोशन होता है वो। एंड फिर उसके वापस से वही कॉमन पॉइंट की जो उसके इन्वेंट्री है उसके ऊपर इंटरनल चेक होना चाहिए, उसका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये कौन सा था अपना? ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं अपन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेम पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या? स्टूडेंट फी, स्टूडेंट रजिस्टर, चेकेट विद काउंटर फॉइल, एडवांस, अरियर्स, सेम पॉइंट। फिर अदर इनकम वापस वही, ग्रांट, लेगेसीज, डोनेशन, एंडाउमेंट्स, कॉमन पॉइंट है ये सारे। यस, आता है नहीं आता? ये कॉन्फिडेंस है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? हाँ। ऐसे लगना चाहिए कि अपने को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पूछो मेरे को, आ रहा है ना? यस। उसके बाद वो अलग अलग फंड्स क्रिएट करते हैं, डिपॉजिट्स, कॉशन मनी, इट विल बी शोन एज लाइबिलिटी। फिर उनके इन्वेस्टमेंट्स चेक करने हैं और फिर वो पुअर बॉयज फंड्स, गेम फंड, एंडाउमेंट फंड्स, कॉमन पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा? अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर अपन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए मेमोरी टेक्निक दिया था आपको, सर्ज एक्सपेंडिचर इज ऑन जनरल पर्पस, ग्रांट, लेगेसीज, डोनेशन, कॉमन पॉइंट्स। फिर अपन ने उसके बदले क्या पढ़ा था? एनजीओ। एनजीओ इज व्हाट? अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे रिसीव डोनेशन फ्रॉम दी मेंबर्स एंड क्या आउटसाइडर्स से भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम, एनर्जी एंड स्किल। फिर वो 100 रुपए के ऊपर प्रॉपर्टी रहेगा तो वो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। फिर उनके सोर्सेज ऑफ फंड कौन से? एक तो कॉर्पस के टूवर्ड्स, फिर रिवॉल्विंग फंड, उसके बाद फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट एंड डोनेशन इन काइंड, और एप्लीकेशन टू दी ऑब्जेक्ट्स होगा उनके। और फिर एक एक चीजें अपने को अर्मार्क फंड्स, कैश, बैंक, स्टॉक, ये चेक करना है। फिर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑडिट का चार्ट हो जाए? बोलो गवर्नमेंट ऑडिट। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट? पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, बराबर। एवोल्यूशन कैसा हुआ?
Parliament controls all the expenses. First it is voted upon and then only expenditure can be incurred out of consolidated funds of India. After expenditure, appropriation accounts are prepared which are later scrutinized by Public Accounts Committee. तो control कब कब है? Control is before and after the expenditure is incurred. Accounts कौन से दो तरीके के हैं? Income and expenditure. Income कौन सी दो है? Tax and non-tax. And with the increase in commercial activities, commercial audit came into existence. एकदम आसान है. ओके, उसके बाद स्कोप क्या कहता है? Basic essentials of auditing, not an investigating agency, highlight the lapses and just report weaknesses. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना? बोलो ना. ऑडिटर. ऑडिटर कौन है? Comptroller and Auditor General of India, appointed by President of India. बराबर. He cannot be removed except by 2/3 of the members of both the houses of the Parliament. Very good. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नहीं सुने नहीं आया. Salary equal to the judge of Supreme Court and tenure 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. उसके बाद role of the auditor. Check whether various authorities act as per rules and orders, advise the president on maintenance of books of accounts and report to the president or the governor. How the audit is conducted? Extent and quantum is decided by C&AG himself. Barabar. It is neither negotiable nor questionable. It is based on nature of transaction and because of institutional mechanism it is conducted either locally or centrally. Our duties की पूरे याद कर लिए थे अपन ने. बोलो. Compile the accounts, audit of receipts and expenditure, receipts from union or state, audit of grants and loans, audit of stores and stocks, and audit of government companies and general provisions. Expenditure audit के 5 पॉइंट बोलो. कौन से? सबसे पहले प्रोविजन ऑफ फंड्स, उसके बाद सैंक्शन, उसके बाद रूल्स एंड ऑर्डर्स, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट. वेरी गुड. खत्म हो गया यहाँ पे. फिर लोकल बॉडीज की बात करें तो हाँ, परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 कौन से है? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. लोकल बॉडीज के सेम पॉइंट्स थे बट लोकल बॉडीज क्या है? बेसिकली इट्स अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उनके सोर्स ऑफ इनकम कौन से? जो लोकल टैक्सेशन के थ्रू जो है वो, बट उनको ग्रांट्स भी मिलते हैं. कौन से? जनरल पर्पस ग्रांट, कंपेंसेटरी ग्रांट्स एंड क्या बोलते हैं उसको? स्पेशल ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट्स. और उनका काम किसके लिए? रेगुलेटरी, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, पब्लिक सेफ्टी, हाइजीन, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के लिए. बट इसमें वो प्रोप्राइटी ऑडिट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स आएंगे. बड़े म्युनिसिपैलिटीज जो दिल्ली मुंबई है उनके ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है? वो खुद. बट बाकी के कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट. एंड प्लस दे हैव टू रिपोर्ट ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स. खत्म हो गया. तो ये हो गया अपना कौन सा? स्पेशल ऑडिट. तो उसके बाद आप मुझे ऐसे नंबर 505 बोल सकते हैं क्या? एक्सटर्नल कंफर्मेशन. बोलो. सबसे पहले इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन व्हाट? ऑडिट एविडेंस. बराबर. तो क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट. 2 बातें होगी. परमिशन ऑब्टेन, परमिशन नॉट ऑब्टेन. परमिशन नॉट ऑब्टेन, इवैल्यूएट द रीजंस. एंड परमिशन ऑब्टेन क्या होगा? डेट, मेथड एंड सिलेक्शन. डेट कौन सी होगी? बैलेंस शीट डेट और एनी अदर डेट. मेथड कौन सी है? पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड लास्ट में डेटर सिलेक्शन कैसे होगा? लार्ज है तो सैंपल, स्मॉल है तो ऑल. एंड दिस मेथड शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू योर क्लाइंट. उसके बाद अपन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटर्स पढ़े थे. बोलो क्या कहता है वो? आपको 3 बातें चेक करनी है. वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड रिकवरेबिलिटी. फिर कंपेयर करना है शेड्यूल्स विद द लेजर एंड डिस्काउंट्स. फिर क्या देखना है? डिस्काउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, स्पेशल अटेंशन, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन. फिर स्पेशल अटेंशन में कौन से 3 पॉइंट देखने हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एजिंग ऑफ डेटर्स एंड डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स के इंडिकेशंस कौन से? सी, टॉप, लाइट. खत्म हो गया यहाँ पे. यस, थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. आपको कॉन्फिडेंस आया क्या? यस. तो आपको एकदम अच्छे से पेपर्स लिखने हैं. राइट? यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. आप कर सकते हो. राइट? यस. सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.